सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मीन्स ETS. ओके, so in this first, why electron transfer system is there present in the mitochondria? What is the usage of electron transfer system? Basically, in the glycolysis and TCA, there are many reducing agent formed like NADH, FADH, majorly formed in TCA, right? Tricarboxylic acid. In the Krebs cycle, these energy reducing agents are formed, energy storing. In this, both energy is stored, right? So electron transport system utilizes or oxidize it to form ATP, right? So it utilizes the energy. It utilizes the energy stored in the NADH or H positive. So what is the role of an electron transport chain? It is basically want to release the energy that is stored in NADH. जो NADH में एनर्जी स्टोर है उसको रिलीज़ करवाना है, तो हम वो एनर्जी कैसे रिलीज़ करवाएंगे? बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस. We will use the oxidation process, and this whole process of releasing of energy that is stored in NADH and producing ultimately ATP, that whole process is electron transport system. Okay, first of all, what is a major basically process? What is a process? Basically, there is a transfer of electron passes from one carrier. There are many carrier present in between the inner membrane of mitochondria. So the electron carrier passes one electron from one to another, right? Here the electrons are passed from oxygen in the mitochondria. When the oxygen we provide ultimate acceptor of electron is oxygen. When we give electron to oxygen, oxygen will provide this electron to water, right? So ultimately forming water. We can say that many radicals are present. For example, A give electron to B give electron to C give electron to D give electron to oxygen, and oxygen combined with the hydrogen giving electron forming the water. So in electron transport chain there is also formation of water. सो लोकेशन क्या है? व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? जो इसका सिस्टम है, ये प्रोसेस है, ये उसके पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, तो वो कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ओके, इसके 4 पार्ट्स हैं. NADH डिहाइड्रोजनेज, फिर सेकेंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर थर्ड है साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स फिर 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, एंड लास्ट वन है कम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज. जैसे ये NCERT की डायग्राम है, हम देख सकते हैं. सबसे पहले कम्प्लेक्स 1 है, इसमें NADH डिहाइड्रोजनेज इसको नाम दिया गया है कम्प्लेक्स 1. दिस इज कम्प्लेक्स 1. देन कम्प्लेक्स सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. This is complex second. Next is complex third, that is called as cytochrome BC1 complex, and fourth one is cytochrome 4 complex 4 cytochrome C oxidase. Water formation takes place in the complex 4. This is an important question. मतलब ਵੀ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, 5 ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द, मतलब इतना ईजी नहीं पाएंगे, बट कोई स्टेटमेंट डाल दें.
that in an electron transport chain water formation takes place in complex third. No, the this is takes place in the complex four. जैसे स्टेटमेंट डाल देना, बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाटर complex थर्ड में बनता है, तो गलत है। नो, कहाँ बनता है? complex फोर में, राइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अब इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टेटमेंट तो आ ही सकती है ना। जैसे काफ़ी सारी स्टेटमेंट डाल दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिलेटेड, तो उसमें से एक डाल दिया वाटर की फॉर्मेशन कम्प्लेक्स थर्ड में होता है, या कम्प्लेक्स सेकंड में होता है, या फिर कम्प्लेक्स फाइव में होता है, या वन में होता है, बट कहाँ होता है? कम्प्लेक्स फोर में, कम्प्लेक्स फोर। और कम्प्लेक्स फाइव में क्या होता है? एटीपी बनती है, जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, एटीपी सिंथेस। देखो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, 1 सेकेंड, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। ये मैट्रिक्स है, और ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वाली, ये जो है ना, यहाँ होता है सारे कम्प्लेक्स, इस लाइन, इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ओके, ये मैट्रिक्स है। बेसिकली यहाँ पे कम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और यहाँ इस मेम्ब्रेन पे ही क्या होता है? एटीपी बनेगी, एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगा, और जो एटीपी बननी है वो क्या है? एनर्जी। जो हम वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए ना। जो हम कुछ भी खाते हैं, जैसे फूड खाया, फूड को जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन होता है, राइट। ब्रेक डाउन हुआ, फिर काफ़ी सारे ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ये सब चला, फिर अल्टीमेटली NADH बना, जो FAD बना। इसको कौन यूज़ करता है? ETC, ठीक है, इसको ETC यूज़ करता है। ETC इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। यूज़ कैसे करता है? इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करके इन दोनों को, तो क्या होता है? ATP बनाता है। इसका बेसिकली देखो, फूड क्यों कहते हैं? खाना खाओ एनर्जी आएगी, तो एनर्जी, ये एनर्जी का प्रोसेस है। अभी एनर्जी कैसे आएगी? फूड खाएंगे, जैसे फूड क्या है? ग्लूकोज होता है ना उसमें, राइट। ग्लूकोज लिया इन द फॉर्म ऑफ फूड, फिर क्या है? हम ब्रीथिंग करते हैं ना, तो ऑक्सीजन के थ्रू इसको मतलब रेस्पिरेशन होती है हमारी, तो फूड की ब्रेक डाउन होती है। फिर इसमें जब फूड ब्रेक डाउन होता है, फिर काफ़ी मेटाबॉलिज्म चलते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, TCA, इनमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में तो डायरेक्ट ATP बनती है, लेकिन कई बार NADH बनती है, या फिर FAD बनता है, इसमें FADH2 बनता है ना TCA में। अब वो ATP तो है नहीं, हमें तो ATP चाहिए, अल्टीमेट हमें ATP चाहिए। तो जो NADH और FADH बन जाते हैं, फिर वो जाते हैं ATS में, क्योंकि अगर डायरेक्ट ATP बन गया वो तो क्यों जाएगा ना, वो तो डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें एनर्जी को अगर यूज़ करना है तो ATP के फॉर्म में यूज़ करते हैं। NADH और FADH2 नहीं यूज़ होता। अगर GTP भी बन रहा है ना, तो उसको भी ATP में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो NADH FADH2 है उसको कौन यूज़ करेगा? ETS। क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन पास ऑन करेगा एक से एक अनदर। अल्टीमेटम क्या होगा? जो कम्प्लेक्स 5 है उस तक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे, और उसमें क्या बनेगा? ATP बनेगा, दैट इज़ एनर्जी करेंसी। ओके, तो ये सारा प्रोसेस है इसका। ये था भी, क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों हो रहा है? वाई, व्हाट इज़ द नीड? जो ATP डायरेक्ट नहीं बन रही, उसको NADH को, FADH को तो यूज़ नहीं कर रहे हम, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो उसको ETS में भेज देंगे। फिर जो ETS है वो NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब हम इनके कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, कम्प्लेक्स पढ़ते हैं। ओके,
सबसे फर्स्ट है कम्प्लेक्स वन। कम्प्लेक्स वन, इस कम्प्लेक्स वन में आता है, इसको क्या कहते हैं, NaDH, क्योंकि हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए, NaDH यूज़ कर रहे हैं। इस करके ये NaDH डीहाइड्रोजनेस क्यों कह रहे हैं, डी मतलब डिलीशन, हाइड्रोजनेस मतलब हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है। ये देखो ना, जैसे NaDH है, H पॉजिटिव इसके साथ ही रहता है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या बना, NAD, इसका हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, NaDH से क्या बना, NAD, तो इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। ठीक है, NaDH है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन पास ऑन किया F1 से आयरन सल्फर। ये है भी जो कम्प्लेक्स वन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन सीरीज होती है, ये पूरा कम्प्लेक्स वन है। जब हम NaDH को NAD में ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन फर्दर जाता है F1 से इलेक्ट्रॉन पास होके क्या आ जाता है, आयरन सल्फर सेंटर में। आयरन सल्फर सेंटर से इलेक्ट्रॉन फर्दर जाता है यूबिक्विनोन में, और ये रिड्यूस हो जाता है, यूबिक्विनोन ना रिड्यूस हो जाता है, यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड, तो ऐसे ही यूबिक्विनोन हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये सीरीज़ है। फर्स्ट हमने NaDH यूज़ किया, या तो ये TC से आया है या ये ग्लाइकोलाइसिस में आया है। अब ये NaDH को हम डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें प्रोसेस चाहिए ना जिसमें हम इसको ATP में कन्वर्ट करें। तो क्या है इसमें, क्या है, NaDH को सबसे पहले हमें ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो NAD में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब हमें इसमें कन्वर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, आ गया ना, रिलीजिंग आउट 2 इलेक्ट्रॉन। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएंगे, F1 में, ये कम्प्लेक्स है F1, फिर ये जाता है आयरन सल्फर सेंटर में और फिर यूबिक्विनोन में। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस क्या है, कम्प्लेक्स सेकंड है, ठीक है, क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। इसमें भी डिहाइड्रोजन रिमूवल, इसमें क्या होता है, जो FADH2 है, देखो FADH2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, FAD में। वो क्या हो रहा था, NaDH से NAD, ये FADH2 से FAD। ठीक है, इस तरह के हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसमें सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करते हैं। ये TC साइकिल की भी रिएक्शन है, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। तो क्या होता है, FADH2 ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, FAD में कन्वर्ट हो जाता है। और जो FAD है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फर्दर आयरन सल्फर सेंटर में और अल्टीमेटली यूबिक्विनोन में। और यूबिक्विनोन क्या हो जाता है, फर्दर रिड्यूस हो जाता है, किसमें, यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब यहाँ ऑक्सीडाइज होके FAD बनता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये क्या हो गया, यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म है। पहले ऑक्सीडाइज था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लिया, तो यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स थर्ड है, इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1। क्यों कहते हैं, क्योंकि BC1 के इससे साइटोक्रोम B भी आता है, साइटोक्रोम C भी आता है, इस करके इन्हें कहते हैं साइटोक्रोम BC1, क्योंकि साइटोक्रोम B भी आ गया तो साइटोक्रोम C भी आ गया। ठीक है, इस करके नाम रखा है साइटोक्रोम BC1। अब जो सेकंड कम्प्लेक्स में यूबिक्विनोन रिड्यूस हुआ था, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन देता है, ये यहीं है, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B में। साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन देता है आयरन सल्फर सेंटर में, और जो आयरन सल्फर सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C क्या है, साइटोक्रोम C के मोबाइल है,
जो हमने पीछे स्टडी किए, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हमने जो पीछे स्टडी किए वो मूव नहीं करते, वो फिक्स्ड है, इमोबाइल है। बट जो साइटोक्रोम सी है वो मोबाइल है, कैरियर है, प्रोटीन कैरियर है। ये क्या है? प्रोटीन कैरियर, प्रोटीन कैरियर है। मतलब भी ये कि ये प्रोटीन है, इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीन। साइटोक्रोम सी इज़ अ स्मॉल प्रोटीन एक्ट एज अ कैरियर। मोबाइल है क्योंकि मूव कर सकता है। अच्छा, मूव कहाँ करेगा? बिटवीन कम्प्लेक्स है थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे नहीं है अभी सभी जगह मूव कर रहा है, नहीं, बिटवीन कम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। एंड ये किस अगर अटैच हो भी रहा है तो कहाँ होता है? इट इज़ अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, राइट। लेकिन जो इसका आउटर सरफेस है यहाँ साइटोक्रोम सी पे होता है, आउटर वाली साइड पे। जो इसकी बाहरली आउटर साइड है वहाँ साइटोक्रोम सी क्या है? लगा हुआ है। नाउ हमारे पास आता है कम्प्लेक्स 4। इसको नाम दिया है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसको क्या है? ऑक्सीडेज है। ओके, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। ओके, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसको नाम दिया गया है कम्प्लेक्स 4 को। जो हमने मोबाइल कैरियर को इलेक्ट्रॉन दिया था साइटोक्रोम सी, अब ये मूव करता है। हमने क्या था? कम्प्लेक्स थर्ड, तो कम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी मूव करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड चीज क्या? साइटोक्रोम सी। उन्हें साइटोक्रोम सी ਜਿਹੜਾ इलेक्ट्रॉन लैके कॉपर कोल जाता है। ਕੰਪਲੈਕਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ कॉपर प्रेजेंट है, कॉपर ए। इस कॉपर ए ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ है? इलेक्ट्रॉन लेके आंदा है। की लेके आंदा? इलेक्ट्रॉन। कौन? साइटोक्रोम सी। फिर इलेक्ट्रॉन किस को लेंदा? साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3। इस सीरीज याद होनी चाहिए, हो सकता सीरीज पा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरीज फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कम्प्लेक्स 4? ऐसे डाल दें कॉपर ए, साइटोक्रोम A3, फिर साइटोक्रोम ए। क्या सही है ये? नहीं, क्या है? कॉपर ए, साइटोक्रोम A2, साइटोक्रोम A3। ठीक है, तो सीरीज याद करनी मस्ट है क्योंकि सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3, देन इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर बी में, कॉपर बी तक इलेक्ट्रॉन गया। अच्छा, साइमल्टेनियसली एक और रिएक्शन चलती है, क्या जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना वी कम्प्लेक्स 4 में वाटर फॉर्मेशन होता है, तो साइमल्टेनियसली ये रिएक्शन चलती है। वी ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करता है इन दी कम्प्लेक्स 4। एंड अल्टीमेटली हमारे पास आता है कम्प्लेक्स 5, जिसे कहते हैं ATP सिंथेस। क्यों? क्योंकि यहाँ ATP सिंथेसिस होती है, नाम से पता चल रहा है ना, ATP सिंथेस और सिंथेसिस, जहाँ ATP की सिंथेसिस हो। कौन सा कम्प्लेक्स? कम्प्लेक्स 5। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ATP की सिंथेसिस तो होगी, लेकिन रिएक्टेंट चाहिए। रिएक्टेंट क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया जाएगा। एडेनोसिन डाई मतलब 2 फॉस्फेट हैं, एडेनोसिन के पास 2 फॉस्फेट हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डालना होगा जिससे ये ट्राईफॉस्फेट बने। डाईफॉस्फेट मीन्स मतलब इसमें 2 फॉस्फेट हैं, बट हमें क्या चाहिए? ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट अटैच हों, 2 नहीं 3 अटैच हों। तो इसलिए हमें क्या ऐड करेंगे? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इसके साथ थर्ड अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा ATP। जैसे हम रिएक्शन ही करते हैं ना, 1 + 2 से 3 बन जाता है।
अभी 2 तो था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट तो थे, लेकिन हमने एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया और क्या बन गए, 3 फॉस्फेट बन गए। तो ये सिंपल रिएक्शन है, कुछ खास नहीं है। और हमारे पास एटीपी बन गया, जिसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारे वर्क के लिए यूज़ होती है। अच्छा, हम डायग्राम देख लेते हैं। जो हमारा NADH से NAD पॉजिटिव बनता है, मतलब NADH का ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन रिमूवल होता है, डिहाइड्रोजनेज होता है, वो मैट्रिक्स साइड पे होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स के पार्ट में ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन रिमूवल का प्रोसेस होता है। NADH से NAD कहाँ बनता है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स साइड। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स है ना यहाँ, तो ये कम्प्लेक्स 1 है, राइट। तो इस मैट्रिक्स के अंदर NADH से NAD बन रहा है, दी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ कुछ भी जेल लाइक मटेरियल हो, राइट, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास मैट्रिक्स होता है, जेल लाइक, मतलब साइटोप्लाज्म के साथ, या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है, राइट। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास होता है कम्प्लेक्स सेकेंड। कम्प्लेक्स सेकेंड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। यहाँ क्या होता है, मैट्रिक्स साइड पे सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, जो रिएक्शन TCA में भी पाई जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन सीरीज है, FAD से आयरन सल्फर में जाता है, राइट। ओके, फिर कम्प्लेक्स थर्ड आता है। कम्प्लेक्स थर्ड में बनता है साइटोक्रोम BC1। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C ये देखो मूव कर रहा है, थर्ड तो फोर्थ जा रहे हैं। साइटोक्रोम C क्या किया, मूव किया टू दी फोर्थ। और कहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 टू कॉपर B। और साइमल्टेनियसली क्या रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, और वाटर फॉर्मेशन का है कम्प्लेक्स फॉर्म में, और इसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एंड कम्प्लेक्स 5 क्या है, जहाँ ATP बनती है, इसको ATP सिंथेस कहते हैं। अच्छा हाँ, कम्प्लेक्स 5 में ना स्पेशल स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, रुको, जैसे ऐसे ला लो, ठीक है, ये F0 है, ये F1 है, इसको मतलब इसको पूरे को कहते हैं ATP सिंथेस। क्या होता है ना, जब ये हमारी मैट्रिक्स साइड है, मैट्रिक्स के साइड में होता है F1 पार्टिकल, और F0 पार्टिकल कहाँ है, इम्बेडेड इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ हमारा F0 है, और यहाँ हमारा आउटसाइड मैट्रिक्स है, F1 है। तो जब इस साइड कौन सी, हाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ इस साइड कौन सी स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जब हमारे कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स सेकेंड, इसमें से नहीं आता ना, छोड़ो, कम्प्लेक्स थर्ड, कम्प्लेक्स 4, ये जो कम्प्लेक्स 3 कम्प्लेक्स है ना, सेकंड में नहीं होता, कम्प्लेक्स 1, ये क्या करता है, हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में सेंड करते हैं। 4 प्रोटॉन ये सेंड करता है कम्प्लेक्स 1, 4 प्रोटॉन कम्प्लेक्स थर्ड करता है, और 2 प्रोटॉन कम्प्लेक्स 4 सेंड करता है, 2। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 8 9 10 प्रोटॉन। तो यहाँ 10 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ से जाते हैं मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन जाते हैं, 1 से, थर्ड से, सेकंड से नहीं जाते, 4 से जाते हैं। जब ये प्रोटॉन यहाँ अकोमुलेट हो जाते हैं, तो जब हमें ATP बनानी होती है ना, यही प्रोटॉन वापस आते हैं इस मशीन के थ्रू
मैट्रिक्स में वापस आते हैं। जब ये प्रोटॉन वापस आते हैं ना मैट्रिक्स के साइड में, तब हमारे यहाँ एटीपी बनती है, एटीपी रिलीज़ होती है। बनने से ज़्यादा हम कहेंगे एटीपी रिलीज़ होती है। बन तो गई होती है, लेकिन प्रोटॉन का जो बेसिकली प्रोटॉन मूव करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, जब मूव करता है तो एटीपी रिलीज़ हो जाती है मैट्रिक्स में। ओके, तो ये हमारा ये है कॉम्प्लेक्स 5 F0 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ये F1 है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स है। ये देखो ये प्रोटॉन है, ये कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन रिलीज कर दिए। कॉम्प्लेक्स थर्ड 4 प्रोटॉन इसने रिलीज कर दिए। और कॉम्प्लेक्स 4 2 में देख लो, नहीं है ना, कोई प्रोटॉन नहीं है 2 में, कोई है, ये 2 है, नहीं है। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन यहाँ, तो टोटल कितने हो गए 10 प्रोटॉन। तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है। यहाँ हाई प्रोटॉन हो गया, हमें डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस पढ़ते हैं ना भी, जो हाई हो जाता है तो वैसे हाई सॉल्यूट मूव टू द लो सॉल्यूट, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होंगी। तो एच की ਹੁੰਦਾ हाई प्रोटॉन टू लो प्रोटॉन, क्योंकि 10 प्रोटॉन है, क्योंकि सारे प्रोटॉन तो इधर मूव कर जाते, ठीक है, लो प्रोटॉन तक मूव करते हैं। फिर जब इलैक्ट्रोकैमिकल ग्रेडियंट बन जाता है, इत्थे ज़्यादा इत्थे घट, तो ये प्रोटॉन है ये मशीनरी के थ्रू वापस मैट्रिक्स आ जाते हैं। जब ये मैट्रिक्स आते हैं तो जी एटीपी अपने को बन गई सी इत्थे ही खड़ी सी, रिलीज़ नहीं हुई। फिर जब प्रोटॉन इधरली साइड आ जाते तो ये रिलीज़ भी हो जाते हैं, तो एटीपी की है इत्थे रिलीज़ हो जाती है। ओके, ये प्रोसैस इत्थे आपां देख सकते हैं। आह की है माइटोकॉन्ड्रिया दे इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये अपना है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जिथे प्रोटॉन आते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 ने प्रोटॉन रिलीज़ करता, 3 ने रिलीज़ करता, 4 ने रिलीज़ करता, ठीक है। तो फिर जो रिलीज़ किते तो यही प्रोटॉन की है, देखो वापस आ गए इत्थे, इत्थों एरो बनया हुआ है ना भी वापस आ गई। जब वापस आए तो की होया एटीपी रिलीज़ हो गया, ठीक है। कित्थे रिलीज़ होंदा एटीपी? मैट्रिक्स दे विच, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं भी ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। इत्थे कॉम्प्लेक्स 1 किन्ने रिलीज़ कर रहे हैं? 4 प्रोटॉन, 2 च कोई नहीं देख सकते हो। तो इत्थे थर्ड दे विच 4 प्रोटॉन, फोर्थ दे विच 2 प्रोटॉन। तो फिर की हुंदा है, ਜਿਹੜੇ प्रोटॉन इत्थे सीगे उही आ देखो N प्रोटॉन लिखा हुआ भी, जिन्ने भी प्रोटॉन इत्थे कम्यूलेट हो चुके हैं वो वापस इत्थे आ जाते हैं, तो की बनाते हैं ATP। तो कॉम्प्लैक्स 1 दे विच की है NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD पॉजिटिव रिलीजिंग हाइड्रोजन, इसलिए इनू की कहते हैं NADH डीहाइड्रोजनेज। फिर FADH2 ये भी की है ऑक्सीडाइज हो जाता है रिलीजिंग हाइड्रोजन, FAD बना लेंदा है। सीरीज आप दी याद कर लियो, ठीक है। तो ये सी अपना इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद करियो कि चीज़ कितने हो रही है, प्रोटॉन मूव्स टू जे कॉम्प्लैक्स 1 रिलीज़ कर रहे हैं प्रोटॉन तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आ रहा है। जे ATP दे विच आपां गल कर रहे हैं तो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स मूव करते प्रोटॉन। तो ਜਿਹੜਾ NADH ऑक्सीडाइज होंदा ਜਾਂ FAD ऑक्सीडाइज होंदा है, ਜਾਂ वाटर कित्थे बन रहा है, ਜਾਂ ATP कित्थे बन रहा है, ये सारा होंदा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दे विच। लोकेशन सब दी प्रॉपरली याद कर लियो। चलो ठीक है, बाय।